हम पढ़ेंगे लेविटिकस 19 चैप्टर, 20 चैप्टर, 21 चैप्टर इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से हिंदी में पढ़ेंगे PSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, इस समय जो वचन का आधार आप हमको देते हो, जो वचन में सच्चाई है वो किसी में नहीं है, कोई शक्ति में नहीं है, कोई ताकत में नहीं है। वचन में जो पावर है खुदा परमेश्वर, वो परमेश्वर तेरे स्वर्ग के सेना को एक्टिवेट करता है। पिता, जब हम वचन पढ़ रहे हैं तेरी सामर्थ एक्टिवेट होती जा रही है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हमारे लिए आप एकमात्र परमेश्वर हो। आपको छोड़ हमारा कोई आश्रय स्थान नहीं है। हमारी सहायता करने वाला पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। इस समय जो हम संघर्ष कर रहे दुष्ट आत्माओं के साथ, जहाँ कहीं से जो इंसान जिस जगह से पिता हमें सता रहा है, हमारे पैरों को पिता, जो भी गंदी आत्मा जो हमारे प्राइवेट पार्ट को छेड़ने के लिए लगाना चाहता है पिता परमेश्वर, उसका कांटेक्ट पॉइंट हमारे पैर में कहाँ पर है खुदा। जो सांपों की आत्माओं की तरह पिता परमेश्वर वो हमारे पिता शरीर पर चढ़ना चाहती है खुदा परमेश्वर, उस इंसान को अब भी जहाँ कहीं पर भी है, अगर मैं तेरी सच्ची दासी हूँ, अगर मैं तेरी संतान हूँ परमेश्वर पिता, अब भी इसी समय उस इंसान के ऊपर तेरा जजमेंट भेजने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करती हूँ। अब भी इसी समय जितना भी कहीं से भी कुछ भी कोई भी कर रहा है पिता परमेश्वर, इस समय मैं तेरे जजमेंट को मांग रही हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, इन वचनों को समझने के लिए हमारी मदद करो। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। लेविटिकस चैप्टर 19 और रिपीटेशन ऑफ sundry laws. First verse say, And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy, for I, the Lord your God, I am holy. Ye shall fear every man his mother and his father, and keep my Sabbaths. I am the Lord your God. Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods. I am the Lord your God. And if ye offer a sacrifice of peace offerings unto the Lord, ye shall offer it at your own will. It shall be eaten the same day. Ye offer it, and on the morrow, and if out remain until the third day, it shall be burnt in the fire. And if it be eaten at all on the third day, it is abominable. It shall not be accepted. Therefore, every one that eateth it shall bear his iniquity, because he hath profaned the hallowed thing of the Lord, and that soul shall be cut off from among the. Therefore, every one that eateth it shall bear his iniquity, because he hath profaned the hallowed thing of the Lord, and that soul shall be cut off from among his people. And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the corners of thy field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest, and thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thine vineyard. Thou shalt leave them for the poor and stranger. I am the Lord your God. Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another, and ye shall not swear by
and thou shalt not. And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not only reap the corners of thy field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest, and thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thine vineyard. Thou shalt leave them for the poor and stranger. I am the Lord your God. Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another, and ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God. I am the Lord. Thou shalt not defraud thy neighbor, neither rob him. The wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning. Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind, but shalt fear thy God. I am the Lord. Ye shall do no unrighteousness in judgment. Thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty, but in righteousness shalt thou judge thy neighbor. Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people, neither shalt thou stand against the blood of thy neighbor. I am the Lord. Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor, and not suffer sin upon him. Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind. Thou shalt not sow thy field with mingled seed, neither shall a garment mingled of linen and woolen come upon thee. And whosoever lieth carnally with a woman, that is a bondmaid betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her, she shall be scourged. They shall not be put to death, because she was not free. And he shall bring his trespass offering unto the Lord unto the door of the tabernacle of the congregation, even a ram for a trespass offering. And the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering before the Lord for his sin which he had done, and the sin which he hath done shall be forgiven him. And when ye shall come unto the land, and shall have planted all manner of trees for food, then ye shall count the fruit thereof as uncircumcised. 3 years shall it be as uncircumcised unto you. It shall not be eaten of. But in the 4th year all the fruit thereof shall be holy to praise the Lord withal. And in the 5th year shall ye eat of the fruit thereof, that it may yield unto you the increase thereof. I am the Lord your God. Ye shall not eat anything with the blood, neither shall ye use enchantment, nor observe times. Ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy beard. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Do not prostitute thy daughter to cause her to be a whore, lest the land fall to whoredom, and the land become full of wickedness. Ye shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary. I am the Lord. Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. I am the Lord your God. Thou shalt rise up before the hoary head, and honor the face of the old man, and fear thy God. I am the Lord. And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him.
But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself, for ye were strangers in the land of Egypt. I am the Lord your God. Ye shall do no unrighteousness in judgment, in meteyard, in weight or in measure, just balances, just weights, a just ephah and a just hin shall ye have. I am the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt. Therefore shall ye observe all my statutes and all my judgments, and do them. I am the Lord. Chapter 20. Of him that giveth of his seed unto Molech, of him that favoreth such an one, of going to wizards, of sanctification, of him that curseth his parents, of adultery, of incest, of sodomy, etc. First verse. And the Lord spake unto Moses, saying, Again thou shalt say to the children of Israel, whosoever he be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that giveth any of his seed unto Molech, he shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones. And I will set my face against that man, and will cut him off from his people, because he hath given of his seed unto Molech, to defile my sanctuary, and to profane my holy name. And if the people of the land do anyways hide their eyes from the man when he giveth of his seed unto Molech, and kill him not, then I will set my face against that man and against his family, and will cut him off and all that go a warring after him, to commit whoredom with Molech from among their people. And the soul that turneth after such as have familiar spirits, and after wizards, to go a warring after them, I will ever set my face against that soul, and will cut him off from among his people. Sanctify yourselves therefore, and be ye holy, for I am the Lord your God. And ye shall keep my statutes, and do them. I am the Lord which sanctify you. For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to death. He hath cursed his father or his mother, his blood shall be upon him. And the man that committeth adultery with another man's wife, even be that committeth adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. And the man that lieth with his father's wife hath uncovered his father's nakedness. Both of them shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. And if a man lie with his daughter-in-law, both of them shall surely be put to death. They have wrought confusion. Their blood shall be upon them. If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. And if a man take a wife and her mother, it is wickedness. They shall be burnt with fire, both he and they, that there be no wickedness among you. And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death, and ye shall slay the beast. And if a woman approach unto any beast and lie down thereto, thou shalt kill the woman and the beast. They shall surely be put to death, their blood shall be upon them. And if a man shall take his sister, his father's daughter, or his mother's daughter, and see her nakedness, and she see his nakedness, it is a wicked
thing, and they shall be cut off in the sight of their people. He hath uncovered his sister's nakedness, he shall bear his iniquity. And if a man shall lie with a woman having her sickness, and shall uncover her nakedness, he hath discovered her fountain, and she hath uncovered the fountain of her blood, and both of them shall be cut off from among their people. And thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, nor of the father's sister, for he uncovereth his near kin. They shall bear their iniquity. And if a man shall lie with his uncle's wife, he hath uncovered his uncle's nakedness. They shall bear their sin, they shall die childless. And if a man shall take his brother's wife, it is an unclean thing, he hath uncovered his brother's nakedness, they shall be childless. Ye shall therefore keep all my statutes and all my judgments, and do them that the and all my judgments, and do them that the land whither I bring you to dwell therein spew you not out. And ye shall not walk in the manners of the nation which I cast out before you, for they committed all these things, and therefore I abhorred them. But I have said unto you, ye shall inherit their land, and I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey. I am the Lord your God, which have separated you from other people. Ye shall therefore put difference between clean beasts and unclean, and between unclean fowls and clean. And ye shall not make your souls abominable by beast, or by fowl, or by any manner of living thing that creepeth on the ground, which I have separated from you as unclean. And ye shall be holy unto me, for I the Lord am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine. A man also, or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death. They shall stone them with stones, their blood shall be upon them. Chapter 21. Of the priests' mourning, of their holiness, of their marriages, the priests that have blemishes must not minister in the sanctuary. First verse say, and the Lord said unto Moses, speak unto the priests, the sons of Aaron, and say unto them, there shall none be defiled for the dead among his people, but for his kin that is near unto him, that is for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother, and for his sister, a virgin that is nigh unto him, which hath had no husband, for her may he be defiled. But he shall not defile himself, being a chief man among his people, to profane himself. They shall not make baldness upon their head, neither shall they shave off the corner of their beard, nor make any cuttings in their flesh. They shall be holy unto their God, and not profane the name of their God. For the offerings of the Lord made by fire, and the bread of their God, they do offer, therefore they shall be holy. They shall not take a wife that is a whore or profane, neither shall they take a woman put away from her husband, for he is holy unto his God. Thou shalt sanctify him therefore, for he offereth the bread of thy God. He shall be holy unto thee, for I the Lord which sanctify you, I am holy. And the daughter of any priest, if she profane herself by playing the whore, she
profaneth her father, she shall be burnt with fire. And he that is the high priest among his brethren, upon whose head the anointing oil was poured, and that is consecrated to put on the garments, shall not uncover his head, nor rend his clothes, neither shall he go into any dead body, nor defile himself for his father or for his mother, neither shall he go out of the sanctuary, nor profane the sanctuary of his God, for the crown of the anointing oil of his God is upon him. I am the Lord. And he shall take a wife in her virginity, a widow or a divorced woman, or profane, or an harlot, this shall he not take, but he shall take a virgin of his own people to wife. Neither shall he profane his seed among his people, for I the Lord do sanctify him. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron, saying, Whosoever he be of thy seed in their generations that hath any blemish, let him not approach to offer the bread of his God. For whatsoever man he be that hath a blemish, he shall not approach a blind man or a lame, or he that hath a flat nose, or anything superfluous, or a man that is broken footed, or broken handed, or crook backed, or a dwarf, or that hath a blemish in his eye, or be scurvy, or scabbed, or hath his stones broken. No man that hath a blemish of the seed of Aaron, the priest, shall come nigh to offer the offerings of the Lord by fire. He hath a blemish, he shall not come nigh to offer the bread of his God. He shall eat the bread of his God, both of the most holy and of the holy. Only he shall not go into the veil, nor come nigh unto the altar, because he hath a blemish, that he profane not my sanctuaries, for I the Lord do sanctify them. And Moses told it unto Aaron and to his sons and unto all the children of Israel. थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से लैव्य व्यवस्था 19 अध्याय, 20 अध्याय, 21 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। पवित्रता और आचरण के नियम। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैं इंग्लिश में पढ़ रही थी तब मैंने आपको नहीं बताया, अभी मैं बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे नियम दिया है। आप सोचेंगे ये नियम सिर्फ इज़राइल लोगों के लिए था, ठीक है। ये नैतिक नियम है, ये हर एक इंसान के लिए है। एक्चुअल देखा जाए तो ये सिर्फ परमेश्वर के साथ रहने वालों के लिए ही, इज़राइल के लिए ही सिर्फ नहीं था। ओके, ये नियम एक मनुष्य जाति के लिए था। ओके, लेकिन सारे मनुष्य जाति इस नियम का पालन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइल नाम से एक जाति को उसने अपने लिए ठहरा लिया था। इज़राइल उसको नाम दिया था, खुद उसी ने दिया था, और फिर उनके ऊपर ये नियम डाला था। ओके, ये नियम जिनके ऊपर पड़ा वो इज़राइल जाति थी। उनके अंदर जब ये नियम पड़ गए तो ये अन्य जातियों से ये लोग अलग दिखना चाहिए, इसकी वजह से। ओके, तो इन लोगों को एक अलग तरीका था जीवन जीने का। इसके अंदर पवित्रता खास तरीके से किस चीज़ के ऊपर आधार करता था, कौन से नियम थे पवित्रता पालन करने का, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो आपको शरीर का पाप क्या है और फिर उसके नतीजे क्या निकलते हैं। ओके, परमेश्वर का कैसा कैसा शरीर के विषय का जो पाप है, जो पवित्रता और आचरण बोला है यहाँ पर, है ना, होलीनेस, और इंग्लिश में इसको क्या बोला है 19th चैप्टर में, रेपिटेशन ऑफ सनड्राई लॉस। ओके, तो आपको हिंदी में जो लिखा है वही मैं बताती हूँ, वहाँ पे अलग मतलब निकलता है। यहाँ पर पवित्रता और आचरण के नियम, जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे पता चला हम कितने केयरलेस रह चुके थे जब अन्य जाति थे।
ओके, हम अन्य जाति में रहते समय हम कितने केयरलेस रहते थे, हम कैसे हमारे शरीर के इमोशंस को किस प्रकार से हम यूज़ करते थे, कैसे हमारे शरीर का हम इस्तेमाल करते थे। अगर हम ये नियम, इस नियम के आधार से अगर देखेंगे तो हमको अभी के जीवन में परमेश्वर का भय हमारे अंदर आना ज़रूरी है। अभी इस समय अगर हम ऐसे कोई गलतियां कर रहे हैं तो आज के समय में भी ये नियम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर रहे हैं। ओके, ये नियम सृष्टि के अंदर से कोई मिटाया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ सारे व्यवस्था को पूरा किया है, व्यवस्था और नियमों को पूरा किया है। ओके, उसने सारा पालन करके फिर हमको परमेश्वर के बेनिफिट्स के लिए रिलीज कर दिया है। ठीक है, नहीं तो ये पालन करना हमारे ऊपर आज भी जो अन्य जातियों में है उनके ऊपर अभी भी ये चीज़ें पड़ी हुई है कि उनके अंदर की अभी भी शरीर की अवस्थाओं का उनको जानकारी नहीं है, परमेश्वर क्या कर सकता है उनके लिए इस शरीर के गलतियों के कारण। ठीक है, हम पढ़ेंगे पवित्रता और आचरण के नियम 19 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है। इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम चोरी न करना और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। मैं यहोवा हूँ। एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर को मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाए। बहिरे को शाप न देना और न अंधे को आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना। मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। ओके 17 वचन देखो। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना।
परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना और अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना। अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेतमेंत स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार न डाले जाए। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए, और याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहे, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए। और 4थे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तब 5वें वर्ष में तुम उनका फल खाना। इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानना। हालेलुया। देखो, मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग दिया था जो प्रॉफिट यूबर्ट एंजल के द्वारा जो ट्रांसलेशन करके मैंने दिया था। उसके पहले मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इस बात से प्रभावित हुई हूँ जिसे चौघड़िया कहते हैं, ओके, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा सताया गया है। तो मैंने उसके अंदर से टाइमिंग देखा उनके सताने का, तो उद्वेग समय रहता था, ओके। और वो किस में देखा मैंने, डेफिनेटली उनके जो गूगल पे मैंने सर्च किया था कौन से टाइमिंग में ये लोग परेशान करते, तो गूगल में जब सर्च कर रही थी तब मुझे पता चला कि अच्छा, तो ये इसमें परेशान करते हैं। तो उसके अंदर जो शुभ और अशुभ मुहूर्त दिए गए रहते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो, टोना करना अलग बात बताया है, लहू लगा हुआ मांस खाना नहीं, वो एक अलग, टोना नहीं करना ये एक अलग बात बताया, लहू लगा हुआ मांस नहीं खाना ये एक अलग बात बताया। यानी ये एक ही बात नहीं है, अलग अलग कैरेक्टर्स है इनके। उसमें एक कैरेक्टर है शुभ समय मानना और अशुभ समय मानना। समझ में आया? तो जब मेरे घर में कोई भी टेक्नीशियन आते थे, मेरे दरवाजे के ऊपर नुकीली चीज़ से कोई टक 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 करके जाता था, तो उनको शुभ और अशुभ मुहूर्त मालूम है, उसके हिसाब से वो काम करते थे, ओके। वो मेरे दरवाजे पर आके कभी जोर से ठप 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 मारेंगे, कभी नुकीले चीज़ से टक 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 करेंगे, या फिर कभी अचानक से वो बोलेंगे कि नहीं हमको उसी दिन आना है, इसी टाइमिंग आना है। हम लोग बोलेंगे नहीं ये टाइमिंग नहीं, वो टाइमिंग में आ जाओ, हमारे पास वो टाइमिंग समय में नहीं है, तो भी वो मानेंगे नहीं, वो टाइम टाल के आ जाएंगे। जिसमें आप मैंने ये सारा जाके देखा, स्टडी किया, तो मैंने ये देखा ये लोग टोटली एनिमी के जो टाइमिंग्स रहते हैं उसी टाइमिंग से मुझे कैच करते हैं, ओके। जिसमें ये लोग अशुभ मानते हैं वही चीज़ों को वो मेरे लाइफ में रिलीज़ किए जा रहे थे, ओके। तो ये तरह से इनके अंदर जो अन्य जाति है उनके पास शुभ अशुभ, टोना करना, लहू लगा हुआ मांस खाना, ये सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध है, ओके। और इसकी वजह से परमेश्वर हमको ये बोल रहा है कि वो नहीं खाना है। तो अब आप सोचो कि परमेश्वर का वचन कहता है हवा को कि तुम भले बुरे फल नहीं का, भले बुरे ज्ञान देने वाले फल को नहीं खाना, ओके। निश्चित मृत्यु है उसमें से अगर खाओगे तो परमेश्वर को पता है भला और बुरा ज्ञान क्या है,
ओके, तो इसी प्रकार से हमको नहीं पता है, ओके, लेकिन जैसा ही भले और बुरे ज्ञान को के फल को हवा ने खाया और उसको आदम को दे दिया, तो क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आ गया? नेकेडनेस, नग्नता शुरू हो गया, है ना। वहाँ से फिर उन्होंने दोष लगाना शुरू किया। आदम ने हवा को दोष दिया, हवा ने सर्प को दोष दिया, सर्प के ऊपर परमेश्वर का श्राप आ गया, आदम और हवा और उसके साथ भूमि के ऊपर श्राप आ गया, आदम के गर्भ पीड़ाओं में श्राप आ गया। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर ने आने के बाद में, वो फल खाने के बाद में जो होगा वो नहीं बताया था उसमें, है ना। तो इसी तरह से अगर हम ऐसा कुछ, मैं जैसे हमको बोला है न मानना बोला है, और न शुभ या अशुभ मुहूर्त को मानना, है ना। तो हमको मानने का नहीं है, वो हम नहीं मान रहे, लेकिन समझो अब लोग जो कर रहे वो इसी के सहारे से हमको सता रहे, और हम देख रहे कि अच्छा, तो ये इस अशुभ समय में, यानी जिसको ये लोग अशुभ मानते हैं, उसी समय में ये हमारे घर में विजिट करने या हमको सताने के लिए या हमको कुछ प्रॉब्लम में डालने के लिए हमारा यहाँ से शुरू होता है। अगर ये सारी चीज़ें हमने समझना शुरू किया, तो यही इफिसियों के पत्री में लिखा है, तुम शैतान के चाल चलाकियों से अनजान मत रहो, उसके हथियार से अनजान मत रहो। ओके, अगर आपको मालूम नहीं है शैतान कैसे प्रकार से आपके ऊपर हथियार चलाता है, तो आप सोचोगे कि ये तो नेचुरल है, ये तो स्वाभाविक है। नहीं, ये स्वाभाविक नहीं है। समझ में आया? ये स्वाभाविक नहीं है। इसके मैंने देखा कि हमारे शरीर का जो अवस्था रहता है, इमोशंस का, फीलिंग्स का, तो इसमें भी ये चौघड़ियाँ अफेक्ट करते हैं। ओके, जब हम देखते हैं कौन सा मून फेसेस के अनुसार अगर हम देखेंगे, तो जो 9th डे, 14th डे, ओके, ये सारा समय आता है तो मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, वॉयलेंट हो जाती हूँ। ओके, ज़्यादा ही। ओके, और उद्वेग समय रहता है तब मैं एरोगेंट हो जाती हूँ। ओके, या फिर रिबेलियस हो जाती हूँ, काफ़ी रिबेल करती हूँ मैं। ठीक है, तो ये प्रकार से हमारे बिहेव्स में भी चेंजेस आता है। अमृत समय रहता है तो मेरी आत्मिक बेटी तो बहुत हंसती है अभी। ओके, उसको भी मैंने सिखाया, मैंने दिखाया उसको, देखो ये तरह से हमारे शरीर कैसे अफेक्ट हो रहे। मैंने उसको दिखाया, देखो अब आप चौघड़िया में देखो अमृत समय कब है, देखना आप उस समय मुझे पूछना मैं क्या कर रही होंगी, तो मैं उस समय मिल्क का प्रोडक्ट कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, या तो मैं दही बना रही होती हूँ, या दही खा रही होती हूँ, या मैं हो सकता है दूध का कुछ भी बना रही होती हूँ, खीर बना रही होगी, या फिर दूध का कुछ तो हलवा या कुछ प्रकार से बना रही होगी, कुछ तो दूध को लेकर मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। ओके, और स्पेशली अगर कुछ भी नहीं है तो मैं उस समय दूध से चाय बनाने के लिए चली जाती हूँ। ठीक है, अब बहुत रहस्यमय है, ये बहुत रहस्यमय है। मैं इतनी परेशान हो गई थी जब मुझे पता चला ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके, उसके बाद मैंने जब प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल का वो राइज ऑफ ज़ोडियाक सुना, तब मैंने समझा अच्छा, तो यहाँ वो रहस्य छुपा हुआ है। ओके, ये देखिए, अब मुझे वहाँ से एक बात और भी मालूम पड़ा। जब हम बोलते हैं ना रुमाल के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आता है और वहाँ से वो परमेश्वर कांटेक्ट पॉइंट बनाता है लोगों के जीवन में चंगा करने के लिए, अच्छी बात है, उसके विरोध नहीं है हम। ओके, मिट्टी से, इवन मैं मेरे घर में ANM से जब मेरी आत्मिक बेटी आई तो वहाँ से उन्होंने मिट्टी लाया था और ऑयल दिया था, तो उन्होंने ये सारी बातें मुझे दी है, तो मैंने उसको अपने साथ रखा है। इवन मैं उसका यूज़ कर रही हूँ और मुझे पूरा पूरा लाभ परमेश्वर उसमें से दे रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वस्तुओं को यूज़ करना। ओके, लेकिन जब आप प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल की सुनोगे तो वहाँ पे उन्होंने बोला लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा कैसे समझते थे पहले के समय में, शुरुआत के समय में, जब मूसा ने बाइबल नहीं लिखा था, उसके पहले वाले समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा को कैसे समझते थे वो लोग? तो वो सृष्टि में से समझते थे। ओके, स्वर्ग में से समझते थे। स्वर्ग क्या है? उसके अंदर आत्माएं है, और दूसरी क्या है? उसके अंदर चांद, सूरज, सितारे, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर लगाई हुई है ना। तो हमारे पास समझने के लिए वही चीज़ें है, मनुष्य उसी में से समझता था।
ओके, इसके लिए मैंने खुद भी देखा है। मुझे बचपन में हमारे पास बड़ा आंगन था। पहले हमारा जो बड़ा घर था वो बंगलो टाइप था और खाली जगह थी, गार्डन जैसा था उसमें। तो हम रात के वक्त में जब हमारे रिलेटिव सब इकट्ठे आते थे तो हम बाहर आंगन में बैठते थे। उस समय में हमको बोला जाता था कि आप चांद को देखते रहो, देखिए कितने समय आप देखते रहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था लोग क्यों चांद को देखते रहते हैं। हमें इतनी 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 ज़्यादा धुन चढ़ गई थी चांद को देखने की कि हम कभी भी कहीं पर भी रहेंगे शाम के समय में तो भी हम अकेले बैठे रहेंगे तो भी हम चांद को देखते रहते थे। हमको नहीं पता क्यों ऐसे। ओके, हमको सिर्फ घर से ऐसे बोला गया था, हाँ देखो कितनी देर देखते देखते हम भी। ओके, तो हम ऐसे देखते बैठते थे। ओके, और हमेशा हम लोगों को बोला जाता था अब देखते रहो, कोई बात नहीं है, कुछ काम नहीं है क्या, फिर देखते रहो चांद को, ऐसा बोला जाता था। अब प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल ने उनका रहस्य खोला। वहाँ पर क्या है, वहाँ से ज्ञान। ओके, रात रात को ज्ञान सिखाती है। ओके, तो एक्सपोज होता है, ज्ञान एक्सपोज होता है जब चांद राज्य करेगा, प्रभुता करेगा रात के ऊपर, सूरज प्रभुता करेगा। ओके, तो दिन के पास दिन की क्रियाएं हैं, रात के पास ज्ञान देने की क्रियाएं हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा लाइफ ऐसा है। सच में इस प्रकार से शरीर का लाइफ यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा ही हम आज भी देखते हैं। ओके, ये आज के डेट में भी देखते हैं। इसकी वजह से वो लोगों ने उसी को मानना शुरू किया क्योंकि उसके अंदर से उनको प्राप्त हो रहा है, कुछ तो जानकारियां मिल रही है, परमेश्वर कौन है, कैसा है। सृष्टि में से उनको समझ में आ रहा है पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, स्वर्ग कैसा है, परमेश्वर की इच्छा कैसी है। उसके अंदर से उनको मालूम पड़ रहा है वो कहाँ जाने वाले हैं, वो कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ से आने वाले, ये सब उनको वहाँ से मालूम पड़ रहा है। तो उन्होंने उन्हीं को भक्ति करना शुरू किया, जबकि उनके मन के अंदर परमेश्वर ने आत्मा से उनके अंदर मन में बिठाया था कि क्या है परमेश्वर, कैसा भक्ति करना चाहिए, किसको मानना चाहिए, ये सब सिखाया था। उस बात को उन्होंने छोड़ दिया था और उन्होंने जो सृष्टि में करके रखा है, जो उसमें से उनको समझ में आ रहा था, वो सृष्टि उनसे बात करती थी। चांद बात करता था, सूरज बात करता था, चांद सितारे सब कुछ जो स्वर्ग का है वो बात करता था उनसे। इसकी वजह से उन्होंने उन्हीं को मानना शुरू किया, उन्हीं को भक्ति करना शुरू किया। तो इसके लिए हमको अगर ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, रुमाल, ऑयल, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। ओके, आप उसके अंदर से परमेश्वर के आत्मा को यूज़ कर रहे हैं, वो खुद परमेश्वर नहीं है। ओके, उसको लेके आप कोई ऑल्टर बना के रखोगे और आप उसके सामने बैठे रहोगे, ऐसा नहीं करना है। हमारी भक्ति हमारे आत्मा में परमेश्वर है। ओके, हम उस परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो हमारे आत्मा में से हमको कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तरह से होता है, हमारा भक्ति करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। ठीक है, ये चीज़ों की वजह से, तो चीज़ों को चीज़ें ही कहना है। ओके, और भक्ति के लिए हमारा परमेश्वर आत्मा में से हमको कांटेक्ट में रहता है हमेशा, लगातार। आमीन। तो भक्ति का स्थान केवल परमेश्वर है, चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत कुछ हमको वो वक्त से मालूम पड़ा जब हमने इसकी स्टडी करना स्टार्ट किए और हमको पता चला ये मानना नहीं है। नहीं तो मुझे बहुत बड़ा सवाल पड़ गया था, अब क्या करें, क्या मैंने भी इस प्रकार से मानना है। ओके, मेरे पास बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आया था, वो भी इतने सालों के बाद, जब मेरा इतना 22 ईयर्स मेरा अब ख़त्म हो रहा है, 21 ईयर्स ख़त्म हो रहा है ये साल ऐसे मतलब पिछले साल तक इतना ज़्यादा मुझे परेशानी हो गई थी इन लोगों से, जो सताने वाले लोग रहते हैं उनसे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या मैं भी अभी इन सारी बातों को देख के बाहर आना जाना शुरू करना है। ओके, क्या ये अशुभ घड़ी है क्या, फिर बाहर नहीं जाना है। ये शुभ घड़ी है क्या, फिर बाहर हाँ जा सकते हैं। ये अशुभ घड़ी है क्या, तो किसी को घर में आने नहीं देना है। हाँ, ये शुभ घड़ी है क्या, तो आने देना है।
तो मुझे कहाँ इतना स्टडी है, मैं क्या है उसके बारे में समझ सकती हूँ। ओके, जिसके बारे में ABCD भी पता नहीं, अधूरा ज्ञान तो खतरा रहता है, फ़ायदा क्या है फिर, कैसे क्या इसको समझेंगे। और जिनको पता है वो लोग को पता है, हमको कहाँ पता है ये सारी बातें। ठीक है, तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमको उसके अनुसार नहीं चलना है। इफिसियों की पत्री में कहा है कि हमको ये सारे काम मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से शैतान कौन से घड़ी प्रवेश करता है। ओके, कौन से घड़ी में प्रवेश करता है, उसके हथियार क्या है। ठीक है, कौन से हथियार है, अगर रोग का समय देखेंगे तो उसमें बीमारियों को हथियार बना के छोड़ा जाता है, दुष्ट आत्माओं को छोड़ा जाता है जो बीमारियों को रिलीज करेंगे। ठीक है, काल समय को देखेंगे तो उग्रता, ओके, वॉयलेंस, एग्रेसिवनेस, ओके, ये सारी चीज़ें, वो शक्ति उस समय, वो एनर्जी क्रिएट रहती है एटमॉस्फेयर में। ओके, और क्या, उद्वेग, इसमें आप ना आगे ना पीछे, ओके, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे। ओके, कुछ भी आप कहीं पर पहुंचेंगे नहीं, सिर्फ आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, संघर्ष करते रहेंगे। जो मिसचीफ करने वाले लोग रहते हैं वो उद्वेग समय को इस्तेमाल करते हैं मिसचीफ करने के लिए, सताने के लिए। ओके, ऐसा समय हमने देखा और ये समय को हम नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ से शैतान के हथियार निकलते हैं। ओके, और मैंने ये भी देखा है कि उनके दायरे रहते हैं। ओके, वो दायरे के बाहर या दायरे के अंदर, ऐसा उनका हिसाब रहता है। ओके, यानी वो दायरे के बाहर अनप्रोटेक्टेड मानते हैं, दायरे के अंदर प्रोटेक्टेड मानते हैं। ओके, यानी उनका फैलाव सब नहीं रहता है, वो सिर्फ नेटवर्क करते हैं। दूसरा अलग जगह रहेगा, तीसरा अलग जगह रहेगा, पहला कहीं और रहेगा, और फिर अटैक्स अरेंज करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स अरेंज करते हैं। ओके, तो हम ये सारी बातों को समझ के हमारे लाइफ में ये सारी बातों को हमने सीखा, समझा, तब पता चला हमको ये सब मानना नहीं है। ये वचन मेरे सामने आया क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा था कि परमेश्वर अब आप हमको बताइए कि ये क्या है, अब ये ऐसे है तो आप हमको देना चाहते हैं कि हमको ये सीखना चाहिए कि हमको मानना चाहिए कि ये कौन से घड़ी में हमने क्या करना है। परमेश्वर ने बोला मेरे आत्मा से जो मिलता है वही सच है और उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। ओके, तब मैंने इसकी परवाह करना छोड़ दिया। एनी टाइम मैं बाहर जाती हूँ, एनी टाइम मैं घर में आती हूँ, एनी टाइम मैं एनीवेयर होती हूँ। ओके, मैं कोई घड़ी के आधार को लेकर मैं कोई फैसला नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है नहीं मानना है आपको, तो सवाल नहीं आता है आपको उसके बारे में कुछ सोचने का। आमीन, सवाल नहीं आता है आपको उसके बारे में कोई भी कुछ भी अपने लाइफ में लेने का, कुछ भी नहीं लेना है हमको। तो क्यों हम उसके बारे में, हम अपने लाइफ को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करें, क्यों, राइट। तो मैं अब नहीं देखती हूँ, एनी टाइम जब मुझे जो चाहिए मैं वो कर लेती हूँ, मुझे जो चाहिए जैसे चाहिए वैसे मैं कर लेती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ बात को। ओके, और निकल जाती हूँ अपने रास्ते आगे, क्योंकि मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर ने कहा है इसे मानना नहीं है। ओके, अगर कोई इसे मान रहा है और जान रहा है ऐसा कि ओ ये तो इसने गलत कर दिया, आज ये नहीं करना चाहिए था, वो उसकी भक्ति है, हमारी नहीं है। ओके, वो चाहे तो हमारे साथ रहे ऐसे सहमति में, ना चाहे तो वो हमसे इनकार करे, उसकी मर्जी। ओके, लेकिन हम उनके कारण ये सारी बातों को लेकर अपने लाइफ को मोल्ड नहीं करेंगे, उसके अनुसार हम उसको ढलेंगे नहीं। आमीन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अपने सिर में घेरा रखकर न मुंडाना और न अपने गाल के बालों को मुंडाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। अब आपको समझ में आया कि हमारे लाइफ में हमने देखा है जो जगह में हम रहते वहाँ पर ज़्यादातर शरीर को सताया जाता है, ज़्यादातर।
ओके। ज़्यादातर शरीर को सताने के जितना हो सकेगा उतना वो हमारे शरीर को असभ्यता के साथ सताते हैं। ओके, जितना हो सके उतना अश्लीलता के साथ सताते हैं। ठीक है, अब उनके पास ये होना, ओके, इसको हम बोलेंगे दुष्टता। ठीक है, लेकिन इसका उगम कहाँ से हो गया? अगर क्वेश्चन पूछेंगे किसी को, भाई तो ऐसा क्यों करता है ना, बहन तो ऐसे क्यों कर रही है, ओके, बेटी तो ऐसे क्यों कर रही है, ओके, ये अश्लीलता है, ये गंदगी है। हम अगर उनके सामने जाकर ये बात बोलेंगे तो वो मानेंगे नहीं, लेकिन उसका उगम कहाँ पर हो गया है? उसका उगम ये है, अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना। ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। ओके, तो बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र किया गया होगा। उस जमीन के ऊपर सब प्रकार की असभ्यता, अश्लीलता भर जाती है और उसको परमेश्वर महापाप कहता है। सिर्फ पाप नहीं कहता है, ओके, उसको परमेश्वर महापाप कहता है। हालेलुया। तो आप सोचते हैं पाप नहीं, सिर्फ पाप नहीं बोलता है वो, ओके, उसको बोलता है महापाप। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर का रीज़न है क्यों वो ज़मीन ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। ओके, क्यों वो ज़मीन ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, क्यों वहाँ के लोग इस प्रकार के, क्यों सदोम गमोरा ऐसा था। ओके, क्यों सदोम गमोरा की अवस्था ऐसी हो गई कि परमेश्वर को उसे ख़त्म करना पड़ा। क्यों नूह के समय ऐसी अवस्था हो गई कि सारे जगत को उसे पानी से डुबो देना पड़ा। ऐसा क्यों, क्या हो गया वहाँ पर? वो महापाप से भर गए थे। समझ में आया? वो महापाप कहाँ से शुरू, कहाँ से हो गया? उन्होंने अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र कर लिया था। समझ में आया? ये महापाप वो जगह में भरने का मतलब महापाप। अब मैं आपको पूछती हूँ, आदम और हवा कैसे भ्रष्ट हुए? सर्प वहां पर जाके हवा को गलत सिखाया, है ना। सर्प गया, इंसान गया नहीं, सर्प गया। ओके, तो ये महापाप होने के लिए, अपनी खुद की बेटी को वेश्या बनाने के लिए, अपवित्र करने के लिए देना, ये किसने बताया होगा किसी इंसान को उस जगह में? शैतान ने। समझ में आया? शैतान ने बताने के बाद में उस इंसान ने उसको मान लिया, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसके बाद क्या होने वाला है। ओके, उसके बाद क्या हो जाता है? नज़ारा आ जाता है सामने। क्या आ गया? वो महापाप से भर जाता है, फिर वो जगह महापाप से भर जाता है। ओके, और परमेश्वर महापाप कह रहा है उसको। वो सिर्फ पाप नहीं कह रहा है, सिर्फ गलती नहीं कह रहा है, वो महापाप कह रहा है वो। ठीक है, तो परमेश्वर इस पाप को खत्म कर देता है, वो पृथ्वी के ऊपर पनपने नहीं देता है ऐसी जगहों को। ठीक है, यहाँ पे 30 वचन देखिए क्या है। मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। तो ये महापाप एक इंसान को शैतान ने बोलने की वजह से सिर्फ नहीं होता है, वो एक इंसान को बताता है और 10 इंसान उसमें ऐड करता है और 20 इंसान उसमें ऐड करता है। अब जो भी उस जगह में आएगा वो उसी प्रकार से करेगा जैसा 10-20 इंसान तैयार हो चुके हैं। जैसा पहले कुछ इंसान करते जा रहे, वो भी खुद वैसा ही करेगा, क्योंकि वहाँ का प्रभाव महापाप से भरा हुआ रहता है। वो भी महापाप के अवस्थाओं को स्वीकार करके उसके अधीन चलना शुरू करेगा। ओके, और इसके लिए फिर इकट्ठे वो नाश हो जाते हैं। कोई भी अवस्था के कारण, किसी भी कारण से इकट्ठे नाश हो जाते हैं। ठीक है, 30 वचन देखिए क्या है। मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऐसों की खोज भी नहीं करना है। यानी ओझा जो करते हैं, अगर आपको कुछ परेशानी आ गया,
तो हमको अगर कुछ परेशानी आ गया, हम प्रॉफिट्स को खोजने लगते हैं, खोज करते हुए निकलते हैं। कोई प्रोफेसी बताए हमको, प्रोफेसी नहीं, हमको ये चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमको जानकारी चाहिए, और कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है ना। ये सारे रहस्य है हमारे लिए। इसके अंदर के अगर हमारे पास जानकारी आने लगी तो कोई यहाँ बचेगा नहीं, है ना। सब एक दूसरे का बदला लेना शुरू करेगा। लेकिन परमेश्वर ने फासले रखे हैं इन चीज़ों के बारे में। ओके, हम खुले दिमाग से इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसको समझने का तरीका जो है वो आत्मा के अंदर से है। ओके, वो आत्मा के अंदर से, उन आत्मा के अंदर के काम को जो परमेश्वर बोला है उस तरह से नहीं, बिना परमेश्वर का इन लोगों को ज्ञान मिल गया है। ओके, जैसा प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल ने बताया कि किस प्रकार से वो चांद और सूरज, इन सब लोगों को इन सब के अंदर से लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, समझते थे, भविष्य जानते थे, ऋतु मौसम सब जानते थे। ये प्रकार से वो अपने जीवन कैसे जाने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है, ये सब जानते थे। तो इसी तरह से ये ओझाओं को और भूत साधना करने वालों को भी आत्माओं ने आके बताया वो कौन है। ओके, वो क्या क्या जानकारी रखते हैं। ओके, वो आत्माओं ने जितना बताया ये लोगों ने उसको लिया, स्वीकारा, उसके अनुसार चले। ओके, और उनके गुण, उनके लोग पहचानना होना चाहिए। तो उनके नाम, उनके टाइटल क्या पड़े? ओझा। ओके, भूत साधने वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके नाम पड़े, लोग उनको उस नाम से जानते थे, क्योंकि ऐसे ऐसे उनके पास रहस्य और भेद की बात उनको आत्मा में से मालूम पड़ रही है, और वो उस आत्मा के अंदर से उन्होंने उसको स्वीकार लिया है। ठीक है, तो उनको सब मालूम है कि हमारे साथ कौन दुश्मनी में, कौन दोस्ती में, कौन कहाँ क्या रखा है, किधर रखा है, क्यों रखा है, सब मालूम है उनको, वो हमको बता सकते हैं। ओके, इसके लिए मनुष्य क्या करेगा? फिर उसको ढूंढता हुआ जाएगा। तो परमेश्वर ने बोला उसको ढूंढते हुए भी मत जाओ। ओके, अगर तुम उनको अपना काम बन जाने के लिए, ढूंढने के लिए भी जाओगे तो अशुद्ध हो जाओगे। समझ में आया? ये मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यानी देखो, भले बुरे ज्ञान का फल नहीं खाना ऐसा बोला, लेकिन भले बुरे ज्ञान के अंदर नेकेडनेस है ये परमेश्वर ने नहीं बताया, है ना। तो परमेश्वर ये भी नहीं बताता है कि ओझाओं और भूत साधने वालों के पास जाने से अशुद्ध होगे। ठीक है, मान लिया, लेकिन अशुद्धता का मतलब क्या है? समझ में आया? जैसे आदम और हवा को नहीं मालूम था निश्चित मृत्यु होने का मतलब क्या है। ठीक है, भले बुरे ज्ञान का फल नहीं खाने का, ये तो ठीक है, मान लिया, लेकिन उसके कारण निश्चित फल मृत्यु आएगा, इसका मतलब क्या है वो नहीं जानते थे। और उन्होंने फल खाने के बाद क्या हो गया? नेकेडनेस सामने आ गया। वैसे ही अशुद्धता क्या है हमको नहीं मालूम है। ओके, जैसे ही ये ओझाओं के पास और भूत साधने वालों के पास चले जाते हैं और उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, वो अशुद्ध हो गए। ओके, अब नो कॉम्प्रोमाइज। देखो, जब भला बुरा ज्ञान का फल खाया तो निश्चित मृत्यु आ ही गई उनके अंदर। क्या वो सच में मर गए शरीर के रूप में? शरीर के रूप में नहीं मरे, लेकिन निश्चित मृत्यु उन पर लग गई, बराबर है। लेकिन उनके निश्चित मृत्यु के रास्ते में क्या शुरू हो गया? नेकेडनेस, है ना। अब यहाँ पर अशुद्धता होगा ये बोला है, अशुद्धता के रास्ते में क्या क्या होगा ये नहीं मालूम है। ओके, तो आप ये कारण पछाड़ लिए जाते हो, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही मालूम है अशुद्ध हो जाएंगे। तो आपको इतना पावरफुल नहीं लगता है ये मानना, ओझाओं के पास नहीं जाना है, भूत साधने वालों के पास नहीं जाना है, ऐसों की खोज नहीं करना है, ये मानना आपको सहज नहीं लगता है। आपको लगता है कि क्या होने वाला है, अरे कुछ नहीं होता है ना। ऐसा लगता है, अरे ये तो लाइफ है ना। अशुद्ध होंगे ना तो क्या प्रॉब्लम है, अशुद्ध तो अशुद्ध, ऐसा लगता है। लेकिन आदम और हवा को नहीं मालूम था
भले बुरे का ज्ञान के फल को खाने के बाद में निश्चित मृत्यु आएगी, लेकिन निश्चित मृत्यु आने का रास्ते में क्या क्या आने वाला है वो उसको नहीं मालूम था। क्या क्या आया वहाँ पे, दोष लगाना आ गया, नेकेडनेस आ गया, डर आ गया। शरीर के बारे में अभी सब डरते हैं, है ना, रोग होगा, ये होगा, वो होगा, शरीर के बारे में इनसिक्योर फील करते हैं वो लोग, है ना, अपने अपने लिए हर एक प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं। ओके, इंश्योरेंस निकालो, दवाई के बॉटल्स सामने रखो, क्या है, हाँ जो जो चाहिए वो ठीक ठाक से रखो, सब तैयारी में रखो, अच्छे से रखो। यानी वो शरीर के बारे में सब कुछ इनसिक्योर हो चुके हैं, है ना। क्या वहाँ पे लिखा था निश्चित मृत्यु का मतलब ऐसा रहने वाला है कि तुम्हारे इस प्रकार से हालत होने वाली है, तुम इस रास्ते से जाते वक्त ऐसे से कुछ होने वाला, ऐसा लिखा था वहाँ पर? नहीं लिखा था, है ना। वैसे ही अशुद्ध हो जाओगे, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है। जब ओझाओं के पास चले जाते हो, जब भूत साधने वालों के पास जाते हो, जब ऐसे लोगों को आप खोज करके चले जाते हो, उसके बाद आपके रास्ते में क्या क्या आता है वो आपको बताएगा, अशुद्धता के रास्ते में क्या क्या आता है। ओके, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उन लोगों को देखो जो ओझाओं के पास जा चुके हैं, उन लोगों को देखो जो भूत साधने वालों के पास जा चुके हैं, उन लोगों को देखो जो ऐसी खोजें कर रही है। ओके, तो इस प्रकार के लोगों की आप स्टोरी सुनो। ओके, वो बताएंगे आपको उनको क्या प्रॉब्लम आ गया था, वो कहाँ पर गए थे, उनको क्या प्रॉब्लम आया, फिर वो कहाँ पर गए, उनको कैसे प्रॉब्लम हो गया और फिर वो कहाँ पर गए और कैसे हो गया, उसके बाद क्या हो गया और उसके बाद क्या हो गया और उसके बाद क्या होगा। अनएंडिंग स्टोरीज है उनके पास। ओके, ख़त्म नहीं होती है उनके स्टोरीज। इतनी ज़्यादा परेशान अवस्था उनके लाइफ की होती है। अब वही है आपका अशुद्धता का रास्ते में पड़ने वाला सारा नज़ारा। ओके, निश्चित मृत्यु के रास्ते में पड़ने वाला नज़ारा तो आपको मालूम पड़ा, है ना। परमेश्वर ने श्राप दिया सर्प को, हव्वा को, है ना, हव्वा को श्राप नहीं दिया लेकिन हव्वा के प्रसव पीड़ा बढ़ा दी, और फिर आदम को मेहनत से रोटी खाएगा बोला। ये सारे तो हो ही गया। उसके बाद आपको पता है काइन कैसे बिगड़ गया, आगे कैसा, नूह का समय कैसा था, सदोम गमोरा का समय कैसा था, सब पता है ना। तो ये था निश्चित मृत्यु का रास्ता, ठीक है, जिसके बारे में परमेश्वर ने वर्णन नहीं किया था, है ना। अब आपको मालूम पड़ना चाहिए अशुद्धता का रास्ता भी वही है, उसी प्रकार से आपको मालूम नहीं है। आप उनको पूछोगे जो लोग ओझाओं के पास जाते हैं, वो आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन के जवाब नहीं देंगे। ओके, कि उनको तसल्ली आई, हाँ मैं यहाँ गया था और बस 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 अब मैं आराम से हूँ, नहीं। ओके, वो फिर भी बोलेंगे कि नहीं, कुछ हल तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको दूसरा रास्ता मालूम नहीं है। ओके, उनको जो मालूम है वो ओझाओं के पास जाना मालूम है, भूत साधने वालों के पास जाना मालूम है, या फिर उनको खोज निकालना कौन और अच्छा है उन्हीं के पास जाना है उनको, ठीक है। उनको दूसरा रास्ता नहीं मालूम। आप उनकी बातों को सुनेंगे, क्या हुआ वहाँ पर, क्या कैसे हुआ, फिर आप ठीक है तसल्ली में है, वो बोलेंगे नहीं हम तसल्ली में नहीं है। समझ में आया? तो यही है वो अशुद्धता का रास्ता। इसके लिए अन्य जातियों को आप पूछोगे क्या भाई खुश है क्या, आराम से है क्या, वो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा अरे ये टेंशन है, वो टेंशन है। भले वो आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, वो अकेले में बैठ के सोचता होगा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, किधर होगा, कैसे होगा, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। हजार सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते। वचन कहता है यशायाह में कि दुष्ट के पास शांति नहीं रहती है। ओके, अब वो ऑलरेडी ओझाओं से मिले जुले लोग हैं, ऑलरेडी भूत साधने वालों से मिले जुले लोग हैं। ओके, ऑलरेडी ऐसे लोगों को वो ढूंढते ही रहते, ऑलरेडी वो अशुद्धता के रास्ते अन्य जातियां चल ही रही हैं।
ओके, हमारे बारे में देखेंगे तो हम भी वही थे पहले, है ना, हम भी वैसे ही चलते थे, वैसे ही रास्ते चलते 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 एक समय आ गया कि हम थक गए और हमने बुलाया, लॉर्ड चलो बंद करो ये सब बोरिया बिस्तर, हमको निकलना है यहाँ से, हम नहीं चाहते यहाँ पर, है ना, पृथ्वी हमारे लिए नहीं है ना। तो ऐसे बेजार हो जाते हैं लोग, ओके, ऐसे बेजार हो जाते हैं। इसके लिए फिर वो नशा चाहते हैं ताकि उनका दिमाग काम ना करे, ओके। इसके लिए वो अपने अंदर कुछ ना कुछ तसल्ली को ढूंढते रहते ताकि उनको कहीं ना कहीं उनको एक समय ऐसा मिले कि बस हाँ, अब मुझे आगे जाना आसान है, ओके। ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए वो पावर के ऊपर पावर ढूंढते हैं। अच्छा, तो ये पावर ऐसा काम करता है, चलो मैं इसे खरीदने को तैयार है, ओके। अच्छा, तो वो पावर ऐसा करता है, चलो मैं इसके रिचुअल्स करने को तैयार है। इस प्रकार से वो पावर्स के ऊपर पावर्स, पावर्स के ऊपर पावर्स, जितने दुनिया के अंदर उनको ले सकते हैं वो उतने ज़्यादा वो पावरफुल बनने की कोशिश करते। उनको लगता है पावरफुल बनना मतलब बस पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में है, ओके। लेकिन वो पावर्स भी काम नहीं आते हैं क्योंकि उसको भी परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया है मनुष्य के लिए सब कुछ करते बैठने का, ओके। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का परमेश्वर है, तो परमेश्वर मनुष्य को संभालता है, पावर्स नहीं, है ना। तो परमेश्वर की ओर से ही उनको समझना पड़ता है कि वो इससे हद से ज़्यादा वो मनुष्य के साथ वो पावर्स रुक नहीं सकती है। अगर रुकने की कोशिश की तो परमेश्वर उस इंसान को हटा देता है पृथ्वी के ऊपर से, ओके। यानी आपको ओपनली पता चलता है कि परमेश्वर कंट्रोल रखा है पृथ्वी के ऊपर, ओके। तो हमारे पास परमेश्वर के आज्ञा मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आमेन। हमको परमेश्वर की आज्ञा मानना ही मानना है, उसको छोड़ के हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हम मसीह के अंदर आए हैं और फिर भी हम इस प्रकार के गलत काम करने में लगे हैं, कोई प्रकार से, जब आप हमने यहाँ व्यवस्था पढ़ रहे किसे नियम लगाए परमेश्वर ने, वो सारे नियम के अंदर से अगर हम कुछ भी गलती कर रहे तो आज भी उसका असर हमको, आज के डेट में भी वो असर करता है हमको, ओके। हमारा मसीह जीवन निकल नहीं जाता है लेकिन वो हमारे लाइफ में उसका फसल आता है, ओके, उसका रिजल्ट्स आता है। हम गलत करेंगे परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़कर, नियम तोड़कर, तो उसके परिणाम आते हैं, ठीक है। तो आप नहीं जानते हैं परिणाम के रास्ते में क्या क्या है, लेकिन परिणाम के रास्ते चलते वक्त आप समझ नहीं पाते ये प्रॉब्लम आया कहाँ से, ओके, ये चीज़ें हुई कहाँ से, ये हो क्यों रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम आपको यहाँ नियम पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख न देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम न्याय में और परिमाण में और तौल में और नाप में कुटिलता न करना। सच्चा तराजू धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। देखो, परमेश्वर ने हमको बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस दिया है ना। हम मत्ती में पढ़ते 5 अध्याय से, जो पहाड़ के उपदेश ऐसा कहा जाता है। यीशु मसीह ने वहाँ पर हमको वचन दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। और आखिरी में ऐसा भी लिखा है उसमें 5, 6, 7 अध्याय में ऐसे एक अध्याय के एंड में ये भी लिखा है कि तुम ये सब मानो ताकि तुम पिता के गुणों को प्रकट डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है।
तुम्हारा पिता कौन है, तुम किसकी भक्ति करते हो। हालेलुया। तो हमारे चाल चलन में परमेश्वर का आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि हमारे चाल चलन में से परमेश्वर कौन है लोगों को मालूम पड़े। हालेलुया। तो ये तरह से यहाँ पर है कि हमको परमेश्वर बता रहा है कि अगर इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो, मैं यहोवा हूँ। आज्ञा उल्लंघन का दंड। 20 वचन से आगे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि इस्राएलियों में से या इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उस पर पथराव करे। मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में अनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य के और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करे, उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नष्ट करूँगा। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने। ओके, देखो, ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर, ओके, यानी उनके फॉलोवर्स बन जाते हैं, वो उनके चेले बन जाते हैं, उनके साथ वो खुद भी हकीम बनने के पूरी ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, व्यभिचारी बने तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। ये हमारा परमेश्वर है। ओके, ये हमारा परमेश्वर है। ठीक है, हम मजाक नहीं कर सकते हैं ऐसी बातों का। हमारे पास हमारा परमेश्वर जिस बात को हमसे दूर रखने के लिए कहता है, तो उस बात को दूर रखने के लिए वो खुद भी व्यवस्था करता है। ओके, वो खुद उसके स्वर्ग के सारी अरेंजमेंट्स देता है। अगर समझो फिर भी अब ये प्रकार से किसी ने भी हमको उन सारी बातों में फंसाने की कोशिश की, तो हमारा परमेश्वर उसे नष्ट कर देता है। हालेलुया। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। ठीक है, क्या आपको पॉसिबल है आप पवित्र खुद को कर ले और आप पवित्र बने रहे? नहीं, है ना। इसके लिए परमेश्वर उसकी कुव्वत देता है, उसकी ताकत देता है। ओके, नहीं तो उसने एक मनुष्य जाति को उठा के इस्राएल नाम देके उसमें वो खुद को उनका परमेश्वर क्यों कहता? क्योंकि वो उसका कैरेक्टर उनके अंदर रखना चाहता है ना। तो वो कैरेक्टर कौन सा है? पवित्र, है ना। तो परमेश्वर पवित्र है, तो हमको भी पवित्र बने रहने के लिए कहा है। ठीक है, अपने आप को पवित्र करना है। यानी पवित्र कैसे करेंगे? हमको मालूम है, अगर ये सारी बातों में से हमने कुछ किया है तो हम अपवित्र हैं। ओके, हम अशुद्ध हैं। अब हमारे लिए कुछ तो योजना चाहिए। वही तो हमने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पढ़ा कि अगर पहले यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय में हमने पढ़ा, हम अगर कोई गलती कर लिए है तो अब हमारे पास गलती के विरोध एक बात करने वाला है। वो कौन है? धर्मी यीशु मसीह। आमीन। तो हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के परमेश्वर के साथ दोबारा एक मन हो सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हमने अपने आप को पवित्र करते हुए जीना है और फिर दोबारा ऐसे गलतियां नहीं करना है। आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ।
कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता या माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह अपने पिता ही का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाए। उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। डेंजरस जोन है ना। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। यदि कोई अपनी पतोहू के साथ सोए, तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, ये है वो गे रिलेशनशिप और लेस्बियन रिलेशनशिप, ओके, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाए। उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। ओके, यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो यह महापाप है। इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाए, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और एक बार पढ़ेंगे। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो यह महापाप है। इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाए, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। ओके, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग को कर्म करे, तो उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाए। उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी बहन का, एक बात आप ध्यान रखो, यहाँ पर व्यभिचार के विषय में दिया गया है, ओके, और उनको मार डालने के लिए इंसान को परमिशन दिया है, इज़राइल को, ओके, और उनकी ही जाति के अंदर के लोगों को परमिशन दिया है। इज़राइल के जाति के अंदर ऐसा कोई मिला नियम तोड़ने वाला, तो उसके बारे में दिया है, वो मार डाल सकते हैं, ओके। और जब वो मार डालते हैं तो उनका जो खून का पलटा है, परमेश्वर बोला तो किसी के भी लहू को नहीं बहाना, उसके कारण मैं तेरा बदला लहू के द्वारा ही लूंगा, ऐसा लिखा है ना। तो इसके लिए हमारा बदला, काइन ने आबेल की हत्या की, तो काइन के द्वारा काइन के बारे में परमेश्वर ने आबेल के खातिर बदला लिया, पलटा लिया, है ना। तो वैसे ही यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जब मृत्यु आ गई, तो उसका भी खून का बदला इज़राइल ने बोला हमारे ऊपर दे दे, महायाजक को बोला, है ना, कि तू चिंता मत कर, तू इसको क्रूस के ऊपर मार डालने की आज्ञा दे दे, ओके। बाकी उसका खून, उसको बिना वजह से मारने का मतलब उसका खून कर देना, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, वो उसका पनिशमेंट आएगा। तो इज़राइल बोलता है उसका पनिशमेंट तो हमारे ऊपर डाल दे, ओके। तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है अगर व्यभिचार कर रहा है कोई, उसके खून का बदला उसको मार डालेगा, अगर कोई, ठीक है, उसको मार डालेगा, तो फिर उसका कोई भी बदला नहीं लिया जाएगा। आमीन। परमेश्वर खुद बोल रही है, ओके। यानी कितना डेंजर है कि परमेश्वर खुद परमिशन देता है इज़राइल लोगों को उस समय, ओके, कि ऐसी गंदी हरकतें करने वाले को तुम खुद मार डालो, अपने अंदर रखना नहीं है, क्योंकि ये एक कीड़े के समान होता है, ओके। अगर आप उससे चलते रहने दोगे तो वो
आपकी जड़, ओके, मनुष्य जाति जो है वो नष्ट करेगा, उसके काम भ्रष्ट कर देगा वो, ओके। इसकी वजह से उस कीड़े को आगे बढ़ने नहीं देना है, ओके। तो ये प्रकार की उसकी उत्पत्ति आगे जाने नहीं देना है, ठीक है। 17 वचन से आगे, यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसको सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसकी सगी बहन या हो या चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे, तो यह निंदित बात है। वे दोनों जाति भाइयों की आंखों के सामने नष्ट किए जाए, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े, तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते को उघाड़ने वाला ठहरेगा, और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते को उघाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नष्ट किए जाए, ओके। अब आप और हमने समझना है इस बात को कि परमेश्वर कितना कट ऑफ करने के पीछे पड़ा है लोगों को उस समय, है ना। इज़राइल के वक्त में जब इज़राइल को दिया गया था ये व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंदर इज़राइल को कितना परमिशन दे के रखा था, ऐसे कीड़ों को आगे जाने मत दो, ओके। इज़राइल के अंदर ऐसे कीड़ों को जन्म लेकर रहने मत दो, है ना। उसका लाइफ इज़राइल के अंदर बढ़ता नहीं जाना है। यानी परमेश्वर हम जो अभी यीशु मसीह में हैं, हम जो पुनरुत्थान के आत्मा से नया जन्म पाए हुए लोग हैं, हमारे शरीर के बारे में भी परमेश्वर यही कहता है, ओके। अगर हम ऐसे कोई गंदे कीड़े की तरह काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे शरीर का भी नाश होने के लिए दे देगा, ओके। क्योंकि परमेश्वर शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा सख्ती बरताया है ना। नूह के समय भी सख्ती दिखाया उसने, किसी को नहीं बचाया, उसने सबको मार डाला पानी के नीचे डुबा के, है ना। नूह को ही सिर्फ उसके परिवार के साथ बचाए रखा। और दूसरा सदोम गमोरा, एक छोटा सा टुकड़ा भी मनुष्य का सदोम गमोरा के अंदर रहने नहीं दिया, सब भस्म कर दिया उसने, ओके। उसको किसी इंसान के द्वारा उसको मार काटे नहीं करना पड़ा, स्वर्ग में से उसने पत्थर की तरह ओले बरसाए, आग के गोले उतर कर आए, ओके। तो अगर ऐसे कोई इतने ढीठ जाति अपने आप को समझती होगी कि वो व्यभिचार के जितनी गंदी कीड़े की तरह हरकतें है करते ही जाएगा परमेश्वर के जनों के विरोध, और परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, तो फिर ये वचन के बारे में वो क्या कहेगा, ओके। अगर परमेश्वर ने अभी तक उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, तो इसका मतलब परमेश्वर अब भी उसको मौका दे रहा है। तो ये वचन समझ ले कि मैं शरीर के पाप नहीं करना, ऐसा मेरे लोगों को बोल के रखा है, हालेलुया। लेकिन अगर किसी ने उनको ज्यादती करके शरीर के पापों में घसीटना चाहा, तो फिर सदोम और गमोरा जो हुआ, नूह के समय जो हुआ, वही होगा, ओके। परमेश्वर अलाउड नहीं करता है ये एरिया ऑफ लाइफ, परमेश्वर अलाउड नहीं करता है, आमेन। हाँ, अगर कोई इंसान खुद हो के उन सारी बातों में इन्वॉल्व है और हटना नहीं चाहता है, तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई प्रभु में है और वो कह रहा है कि नहीं प्रभु, मुझे इन सब बातों से छुड़ा, मैं इन बातों में रुकना नहीं चाहती, तो फिर उसको परमेश्वर सपोर्ट करता है, ओके। उसके कारण परमेश्वर बड़े बड़े प्रकार के जजमेंट्स भेजता है लोगों के ऊपर, ओके। और वो लोग उस समय कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई उनके लिए कोई रास्ता नहीं है दूसरा, ओके। परमेश्वर के पनिशमेंट के नीचे आना पड़ता है उनको, ठीक है। वो कहीं बच के भाग नहीं सकते हैं उस समय के वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत पूरी तरह से अच्छे से समझ के चलना है कि नहीं, देखो, अगर हमारा परमेश्वर ये बातों को इस इजराइलियों के बीच में इतना इम्पोर्टेंट दे रहा है, हम पुनरुत्थान के आत्मा से जन्म लेने की वजह से भी हमारे शरीर पर परमेश्वर उतना ही महत्व रखता है, ओके। हम उसके साथ
कोई खेल खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 18 वचन। फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने वाला ठहरेगा और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते को उघाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नष्ट किए जाए। अपनी मौसी या फूफी का तन न उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़े वह अपनी निकट कुटुंबिनी को नंगा करता है, इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा को का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। यदि कोई अपनी भौजी या भैयाहू को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौना काम जानना और वह अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निर्वंश रहेंगे। तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह न हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उगल दे, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना। हालेलुया। देखो क्या दिया है। हम बोलते हैं ना कि हमारे हमारे पहले पीढ़ियों में ऐसे ऐसे किया करते थे। इवनिंग होते ही लाइट लगाना है, और क्या, नमक पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, और क्या क्या है ऐसे। मैंने तो इतना कुछ उसका पालन नहीं किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग रीति रिवाजों को पालते हैं। ओके, पैरों को छूना, ठीक है, और क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसे कुछ रीति और रिवाजों को, रस्मों को मानते हैं। ठीक है, उसके वक्त में फिर हम कुछ उनके चीज़ें भी पका लेते हैं, जो भी वो समय में पकाएंगे, जो उन दिनों में, उनके त्योहारों में, उनके सारे जो भी उनके विश्वास करने की भक्ति होती है उसके अनुसार जो वो करेंगे, हम भी वैसा करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे, हम भी उस दिनों में ब्लैक कलर पहनने की कोशिश करते हैं। वो अगर उस दिन कुछ कहीं पर कुछ मतलब मीठा बनाएंगे, मीठा खाने के लिए रखेंगे, और वो दिन होता है उनका, वो मीठा खाना है, तो फिर हम भी ऐसे ही करेंगे। तो ये सारा जो रहता है हमारे ऊपर उनका प्रभाव रहता है। ओके, हमको उनके रस्म को पूरी नहीं करना है, हमको उसके अनुसार नहीं जाना है। ओके, हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है, हम परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी रहे, उनके अनुसार हमारा लाइफ नहीं जीना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। हाँ, ये इसको कुकर्म बोलता है परमेश्वर। ओके, जो घिनौने काम हमने पढ़े, कैसे शरीर के काम लोग नहीं करना है इस्राएल में, ऐसा जो नियम दिया था, वो बोल रहा है परमेश्वर कि इन जो लोगों को अब मैं निकाल रहा हूँ। ओके, अगर किसी ने आपको घर खाली करने के लिए बोला, आप रेंट पर रह रहे हो, तो आपको किसने निकाला? आप कैसे बोलोगे किसने? आप बोलोगे कि नहीं, मेरे से गलती हो गया इसीलिए मुझे निकाला गया, या आपको स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया समझो। ओके, या फिर आपको जॉब पर से फायर कर दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, वो पता नहीं, शायद से जेलस ही होगा उनका, इसके लिए मुझे जॉब में से हटा दिया। ठीक है, ऐसा सोचेंगे आप। नहीं, परमेश्वर कहता है मैं उस जगह में से निकालने जा रहा हूँ। अब वहाँ पर कौन आएगा फिर? अब वहाँ पर इस्राएली आने वाला था, है ना, जहाँ से जो जातियाँ जो अलग तरीके का कुछ भी काम कर रही है उनको परमेश्वर इसीलिए निकाल देता है ताकि परमेश्वर के जन वहाँ पर स्थापित कर दिए जाए। आमीन। आपको और हमको ये बात ध्यान रखना है, परमेश्वर हमारी जगहों को
अन्य जो भी लेके बैठा होगा उसके यहाँ से उसको हटाने का काम करता है और हमको उसमें रख देता है। कभी आपने देखा कि वैकेंसी मिल जाती है, ओके, जॉब वैकेंसी, हाँ क्या हो गया, अरे अचानक से वैकेंसी आया, मैंने अप्लाई किया और मुझे मिल गया वो जॉब, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो वैकेंसी आई कहाँ से, है ना, आपके लिए वो वैकेंसी के ऊपर पहले कोई बैठा हुआ था, ठीक है, तो आपको आना है, इसके लिए उसको वो जगह छोड़कर जाना पड़ा। समझ में आया? तो आपका काम दिखाता है कि आपको किसने निकाला। अगर आप परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाली बातें कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के, तो फिर वहाँ से आपको निकाल दिया जाता है और उस जगह में जो परमेश्वर को पसंद है वो बातें किया जाएगा। ऐसे प्रकार के अपॉइंटिंग्स वहाँ पर किए जाते हैं। ओके, तो कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ का कैसे भी हालातों में अगर आप वहाँ से निकाल लिया जाता है तो इसका मतलब है आपको जो करना चाहिए आप नहीं कर रहे, और वहाँ पर परमेश्वर को जो चाहिए वो करने वाला इंसान अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, ये परमेश्वर का तरीका है, ठीक है, ऐसे काम करने का। तो अन्य जातियों के बारे में परमेश्वर उनको हटाता है अपनी जगह के लिए, जो अपने लोग मांग रहे हैं उनके लिए वो जगह को खाली करके देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सब बातों को, जो लोगों ने इस प्रकार के गलत काम कर रखे हैं वो उनसे नफरत करता है। वो कहता है मुझे उनसे घृणा हो गई है, नफरत हो गई है। हालेलुया, उनके कुकर्म इतने ऐसे कर रखे हैं कि मुझे उनसे घृणा हो गई है। हालेलुया। अब अगर आप ऐसे बोलेंगे, मैं ऐसे बोलूँगी, तो हमारे पीढ़ियाँ क्या बहुत शुद्ध जीवन जीते हुए आए थे? नहीं, ओके, हम अन्य जातियों में से आए हैं, तो हमारी घृणा थी परमेश्वर को। ओके, हमारी पीढ़ियाँ कुकर्म कर बैठी थी और हम हमेशा ही निकाल लिए जाते थे और वहाँ पर जो परमेश्वर का चाहिए उन्हीं लोगों को बिठाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पाप अपराध माफ़ हो चुके हैं, हम शुद्ध जीवन पवित्र हो चुके हैं। अब परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर हमारी खातिर अब समय को बदलता है, हमारी खातिर हमको चाहिए वो चीज़ें दिलाता है। आमीन। तो अब हमारा रास्ता परमेश्वर चलाता है। अब हम देखेंगे जैसा इजराइलियों के लिए परमेश्वर बोलता है ना कि मैं उन लोगों को निकालूंगा, इसके लिए परमेश्वर हमारी सुनता है और हम प्रार्थना करेंगे ना तो हमारे लिए वो करेगा ही करेगा। ओके, क्योंकि उसको अन्य जाति के कामों से घृणा है। आमीन। 24 वचन देखो, पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हें तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार के का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों न हो जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा कर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध न करना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया। तो निरंतर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बने रहना है। जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़कर कुछ भी गलती गुनाह करने में आनंद बनाते हैं तो हमको दुख होना चाहिए। ओके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध रहे, पवित्र रहे, और हम खुद उन सारे बातों को अपने लाइफ में से कट ऑफ करें जो अशुद्ध करता है, जो अपवित्र करता है। उसका कहना है कि तुम खुद अपने मर्जी से उसको कहो, मैं ये नहीं चाहता हूँ। ओके, मुझे ये गलत काम नहीं करना है, ये अशुद्धता मैंने नहीं करना है। तुम खुद इनकार करो। ओके, और यही तुम बता रहे हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर चाहता है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। ये मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं डालूंगा। ओके, तुम खुद क्या करना है, ऐसे गलत बातों को इनकार करना है ताकि तुम
तुम मेरे निरंतर बने रहो। हालेलुया। 27 वचन, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। ओके, याजकों की पवित्रता। अब याजकों की पवित्रता बोलेंगे तो याजक तो हम भी है ना। हम पुनरुत्थान के आत्मा के द्वारा याजक क्या रॉयल प्रीस्टहुड, राज घराने के याजक हमको कहा गया है ना। तो हम पढ़ेंगे इनकी पवित्रता के बारे में कैसे है। याजकों की पवित्रता 21 अध्याय पहले वचन से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक है उनसे कहे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता या पिता या बेटे या बेटी या भाई के लिए, या अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह न हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र हो जाए। वे न तो अपने सिर मुंडाए और न अपने गाल के बालों को मुंडाए और न अपने शरीर चीरे। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करे, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहे। वे वेश्या या भ्रष्टा से विवाह न करे और न त्यागी हुई से विवाह करे, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। ओके, देखो 7 वचन क्या कहता है। देखा 7 वचन। आप पूछते हैं ना कि मैंने किसके साथ कैसे रहना है, क्या करना है। देखो क्या लिखा है ना, चुनाव कैसे करना है। हम याजक है तो वे वेश्या या भ्रष्टा से विवाह ना करे, ओके, और न त्यागी हुई से विवाह करे। हाँ, आप बोलते डिवोर्सी से आप शादी कर सकते हैं क्या? त्यागे हुओं से जो डिवोर्स हो गए, डिवोर्सी है, ओके, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप याजक हो। हालेलुया। अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है, ठीक है। इसलिए तो याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। और यदि याजक की बेटी, देखो यहोवा हमको पवित्र करता है, हम खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो याजक और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग से जलाई जाए। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे और न अपने वस्त्र फाड़े और न वह किसी लोथ के पास जाए और न अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि देखो, हाँ, यहाँ पे हम कौन है? परमेश्वर के पवित्र मंदिर है। हमारा शरीर कौन है? परमेश्वर का पवित्र मंदिर है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम उसमें से बाहर नहीं निकलना है। और दूसरा, हमारे अंदर का कोई भी चीज़ को हमने अशुद्ध नहीं करना है, अपवित्र नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए क्या दिया है? अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हो। मैं यहोवा हूँ। और वह कुंवारी स्त्री से ही विवाह करे, जो विधवा या त्यागी हुई या भ्रष्ट या वेश्या हो, ऐसी किसी से वह विवाह न करे। वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुंवारी कन्या से विवाह करे, और वह अपनी संतान को अपने लोगों में
अपवित्र न करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। यानी हम अपने बच्चों को भी अशुद्ध कामों में नहीं दे सकते हैं। ओके, ये नहीं है कि आप प्रभु में है और आपके बच्चे कुछ भी करते जाए, ऐसा नहीं है। उनको भी पवित्रता में ही उनके विवाह, उनका रहना, उनके चाल चलन पवित्रता में ही संभाल के रखना है हमको। ओके। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहे कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। कोई क्यों न हो, जिसमें दोष हो वह समीप न आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नक चपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पाँव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अंड पिचके हो। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोष युक्त है, कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह न तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिससे ऐसा न हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इसलिए मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को तथा सब इस्राएलियों को ये बातें कह सुनाई। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। Acts 20 chapter 13 verse से 24 verse, Psalms 33 chapter 34 chapter। प्रेरितों की काम 20 अध्याय 13 वचन से 24 वचन, भजन संहिता 33 अध्याय 34 अध्याय। हम पढ़ेंगे अकेले में, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे। जब हम इस प्रकार से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमको विशेष रूप से हमें सुधार लाने वाले वचन देगा, हमारा ध्यान खींचेगा वचन में, और हम उसके अनुसार अपने अंदर बदलाव होने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं सभियों ने इसी प्रकार से पढ़ना है। आपको परमेश्वर का आत्मा जैसा अगुवाई करता है वैसे आप पढ़ सकते हैं। निश्चित इतना ही करना है कि परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है, परमेश्वर के आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा, आपने हमें वचन की गहरी बात आज इतनी परमेश्वर सहज रीति से समझाई और सिखाई। हम इस बात से वाकिफ हो गए कि हमारा जीवन कितना ही परमेश्वर एक बहुत ही पिता डेलिकेट है खुदा, जो तू हमसे ये चाहता है कि हम निरंतर तेरे बने रहे। ये कितना ही परमेश्वर पिता महान तेरी डिज़ायर है हमारे लिए खुदा, कि तू चाहता है मनुष्य हम तेरे साथ, हम जो इस पृथ्वी पर तेरी नई सृष्टि है तेरे साथ बने रहे। थैंक यू फादर गॉड। हम जिम्मेदारी के साथ पिता, हम पवित्र और शुद्ध जीवन जीने का मन रखते हैं। हमारे युद्ध जो शत्रु हमारे साथ किया करता है, जिसके कारण हमें अशुद्धता का सामना करके पिता उसे पिता हमारे जीवन में से तोड़ना पड़ता है। मेरे परमेश्वर, हमारे गुण, हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन में पिता तो अपने विशेष अनुग्रह दे, ताकि हम परमेश्वर तेरे पवित्र गुणों में, तेरे शुद्धता में बने रहे, और शत्रु को पिता हम हरा के तेरे राज्य में हम तेरे काम करते हुए आगे बढ़ते जाएं, और हम सदा सदा के लिए हम तेरे ही हैं। हमारे सारे चाल चलन में से हम प्रकट करते जाएं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।